A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce some of the important practical questions related to your class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed the important questions related to the depreciation, bills of exchange and bank reconciliation statement. So in this video, we also discussed the practical question based on the depreciation as well as the upcoming chapter that is on rectification of the error. So before starting the practical portion based on the depreciation, let's we discuss the few important theoretical points related to the chapter depreciation. You know very well what is a depreciation. Depreciation means decrease in the value of fixed tangible assets. It means जब किसी भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है, घटती है, इट विल बी नोन एज एन डेप्रिशिएशन. एंड डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. Okay, and the third and very important point related to depreciation is it is an appropriation out of profit. Sorry, it is an allocation of fund. It is not an expense, it is an allocation of fund. ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जाम में क्लासेस में बताई हुई हैं, कई सारे वीडियोस में बताई हुई हैं, तो इन सारे फीचर्स पे डिस्कस कर लेना. Apart from this, there are various types of the interrelated terms with the depreciation. So what is depreciation? Decrease in the value of fixed tangible assets. इसके साथ ही साथ एक वर्ड और यूज होता है amortization. So what is an amortization? Amortization means decrease in the value of fixed intangible assets. It means जब किसी fixed intangible assets like goodwill, patent, copyright, इस तरह की assets की जब value decline होती है, गिरती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं amortization. जैसे कि goodwill written off, patent write off, copyright write off, it is called amortization. As well as depletion. Depletion refers to the extraction of natural assets या extraction of wasting assets. If you are talking about the oil wells, okay, coal mines. So जब हम oil wells and coal mines को क्या करते हैं, extract करते हैं, इनसे natural resources को क्या करते हैं, extract करते हैं, so it will be known as a depletion. So what is a depreciation? Depreciation means decrease in the value of fixed tangible assets, whereas the amortization means decrease in the value of fixed intangible assets, and depletion means extraction of the vesting assets, natural resources को जब हम extract करते हैं. As well as you know very well, there are basically two methods of depreciation. The first one is a straight line method, and second is a written down value method. So कुछ ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है, इनको अपनी कॉपीज में शॉर्ट आउट कर लो, जैसे मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन, amortization and depletion, as well as the feature of depreciation, method of depreciation. So let's we move to the numerical part of depreciation, and thereafter we will discuss about the rectification of error. The Saurabh having balances on 1st April 2018 as follows. Plant and machinery is 10 lakh and provision for depreciation is 3,50,000. So आपको पता है दो अकाउंट बनाने हैं आपको, एक बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक बनाना है आपको सेकेंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट. फॉर्मेट वही सेम है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. एंड सिमिलरली जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाओगे, अरे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इट मींस एसेट्स अकाउंट,
तो उसमें भी फॉर्मेट विल बी सेम, दैट इज इन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा. And the value information is opening balance of the plant and machinery account is 10 lakh and the date is 2018 April 1 to balance BD is and value is 10 lakh and the opening balance of the provision for depreciation account is 2018 April 1 3,50,000. अब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइनल एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर से. एंड द क्वेश्चन इज ऑन 1st July 2018 सोल्ड अ पार्ट ऑफ द मशीनरी फॉर रुपीज 1,25,000 व्हिच वाज परचेज ऑन द 1st October 2016. 1 अक्टूबर 2016 में एक मशीन आपने खरीदी थी. कितने में खरीदी थी? 1,60,000 रुपए में, और आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया 1st July 2018 में 1,25,000 में. एंड सेम डेट, उसी डेट में परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर रुपीज 3 लाख, उसी डेट को आपने 3 लाख की एक और मशीन खरीद ली. प्रिपेयर अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम 2018 टू 2020. 2018 से 2020 तक आपको प्रिपेयर करना है. इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. तो पहले तो ये इतना ध्यान रख लो कि आप जो मशीन बेच रहे हो वो कब बेच रहे हो? जुलाई 1, 2018 में बेच रहे हो. ठीक, तो जुलाई 2018 तक पहले आप क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन, जिस मशीन को आप बेच रहे हो. ठीक, ये तो अभी आपने जस्ट देखा ही है इस तरह के क्वेश्चंस. कब से कब तक अडेप्शन लेगा? अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून, फॉर 3 मंथ्स. क्यों? जुलाई 1 है, इस पे पूरा साल का अडेप्शन नहीं लगेगा. तो पहले हम देख लेते हैं डेप्रिसिएशन लगेगा कितना. तो अगर हम बात करें, उस मशीन को हमने खरीदा कितने था? 1 अक्टूबर 2016. तो वर्किंग नोट की जब बात होगी हमारी, सो वर्किंग नोट में सबसे पहले हमने उसको 1 जुलाई 2018 में 16 में खरीदा था ना. 1 अक्टूबर 2016 में खरीदा था. अक्टूबर कितने में खरीदा था? 1,60,000. सो उस पर हम पहले क्या करेंगे? 2016-17 का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, 17-18 का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, और 18 वाला जिस ईयर उसको हम सोल्ड आउट किए हैं 18-19 का डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से है तो कोई दिक्कत नहीं होगी. 16-17 में अगर डेप्रिसिएशन होगा तो 1,60,000 का कितना परसेंट बोला है क्लियरली क्वेश्चन में? 10%. फॉर व्हाट मंथ? फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 मंथ. एंड 17-18 में पूरा 1,60,000 का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा. एंड फॉर 18-19 1,60,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स. तो ये पहले साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 8,000, दूसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 16,000, तीसरे साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 2,000. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मी इट इज एन 4,000, सॉरी फॉर दैट. So total depreciation is 24 plus 4, 28,000. अब तक का उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 28,000. 18-19 में तो पहुंचा भी नहीं है एसेट्स, तो उस पर करेंट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 4,000. और टोटल डेप्रिसिएशन मैंने आपको जस्ट बताया है, उसको हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. कितना टोटल डेप्रिसिएशन आया? 28,000. Am I correct? If we are correct, so answer is also correct. Okay, so provision for depreciation, total depreciation is 28,000. और ये उड़कर कहाँ चला जाएगा? इस अकाउंट में 2018 जुलाई 1 में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 28,000. अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. तो मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1,60,000. 1,60,000 और उस पे डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 28,000. सो नाउ उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 1,32,000. और 1,32,000 का जो वैल्यू है, जो मशीनरी है, उसको हमने कितने में सोल्ड आउट किया? हमने सोल्ड आउट किया है 1,25,000. तो जाहिर सी बात है लॉस हो गया. तो लॉस ऑन
सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्वल्स टू 1,32,000 minus 125, that is an 7,000. So loss will be shown in the credit side by statement of PL is 7,000. ये हो गया उस मशीन का ट्रीटमेंट। और सॉरी, उसमें हम बैंक भी लिखते हैं जितने में हम सोल्ड आउट करते हैं। कितने में हम सोल्ड आउट किए हैं? 1,25,000। सिस्टम क्या होता है? पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो, फिर सेल वैल्यू रिकॉर्ड करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करो। उसके बाद आपको पता है साल एंड होगा, तो साल एंड होने पे हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। सिंपली डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में चार्ज होगा? इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कब चार्ज होगा? लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, March 31, 2019। और उस क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा है ऑन द सेम डेट, उसी दिन हमने एक और मशीनरी खरीदी है 3 लाख रुपए की। जो मशीन खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक। कितने की? 3 लाख की। और कब खरीदा है? सेम डेट, यानी जुलाई 1 को 2018। तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यू कैन सी दैट 10 लाख में से कितने की मशीन सोल्ड आउट हो गई? 1,60,000। 1,60,000 वाली मशीन बेच दिया ना। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर द 2018-19 ऑन द रिमेनिंग बैलेंस, सो वो होगा 10 लाख में से हम लोगों ने 1,60,000 की मशीन सोल्ड आउट कर दी, तो बची कितनी? 8,40,000। 8,40,000 पे हम लोग कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 10%। ये पहली मशीन की है। और जो दूसरी मशीन अभी हम लोगों ने नई खरीदी है, वो कितने की है? 3 लाख रुपए की। उस पर हम लोग 10% से कब तक? जुलाई से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन काम करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 9 मंथ। क्वेश्चन को अगर आप सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो 8,40,000 का 10% इज 84,000 एंड 3 लाख का 10% 30,000 एंड 30,000 का जब आप 9% फाइंड आउट करेंगे, सो द वैल्यू इज 30,000। बट फॉर 9 मंथ इट इज वेरी क्लियरली दैट 9 मंथ का आएगा 22,500 and the balance of the provision for depreciation account on 2019 March 31 to balance CD कितना आ रहा है for the current year is provision for depreciation of 4,32,500 and जब हम बात करेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का, तो वो तो क्लियरली दिख रहा है कि 10 लाख और 13 लाख हो गया। लेकिन उसमें से हम लोगों ने 13 लाख में से 1,60,000 की मशीन बेच दी, तो 8,40,000 प्लस 3 लाख टोटल मिलाकर कितनी मशीन बेची? 11,40,000 बाय बैलेंस सीडी ऑन 2018 मार्च 30। सो ये बन गया आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19। और आपने देखा इस क्वेश्चन में कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट टिल द डेट ऑफ द इट्स सेल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट जब हम किसी एसेट को सोल्ड आउट करते हैं तो पहले जिस डेट को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं उसका करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, फिर टोटल डेप्रिसिएशन को ऐड करके उसे हम लोग एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसकी सेल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं एंड देयर आफ्टर वी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स। सेल वैल्यू थी 132, सॉरी उसकी करंट वैल्यू थी 132, बट उसको हमने सेल किया 125, तो हमें लॉस हो गया 7,000 रुपीज का एंड लॉस विल बी रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट्स अकाउंट। एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली हमने एक नई मशीन खरीदी, तो जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी एसेट्स को अपने अकाउंट को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, तो जो पुरानी मशीन है उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नई मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस है
जो डेप्रिशिएशन टॉपिक से रिलेटेड हैं. सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी प्रॉपरली. So let's we move to the long answer type question, and the questions related to the chapter depreciation, and this question having a 8 marks, and the question is a company whose accounting year is the calendar year. मतलब एक कंपनी है जिसको अपना accounting year कौन सा मानती है? कैलेंडर ईयर started from the 1st January and end on the 31st December. On 1st April 2016 plant costing rupees 6 lakh उन्होंने परचेस किया 1 अप्रैल 2016 को एक प्लांट 6 लाख रुपए में. एंड एक प्लांट परचेस फर्दर प्लांट ऑन 1 अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग 4 लाख एंड ऑन 1 जुलाई 2017 कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख. ऑन 1 जनवरी 2018 1/3 of the plant which was purchased on 1 April 2016 become obsolete and was sold for rupees 60,000. It means 1 जनवरी 2018 में अब जो प्लांट था 1 अप्रैल 2016 में खरीदा गया था, उसका 1/3, पूरा नहीं, सिर्फ 1/3 सोल्ड किया गया 60,000 में. सो हाउ द प्लांट अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड इफ प्लांट वाज डेप्रिशिएटेड बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बाय 10%. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? प्लांट अकाउंट बनाना है फॉर द बाय द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. सो जब आप प्लांट अकाउंट बनाओगे, सो फॉर्मेट क्या होता है प्लांट अकाउंट का? आपको पता ही है. फॉर्मेट ऑफ द प्लांट अकाउंट इज डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज. ठीक है. सबसे पहले आपने 2016 में खरीदा अप्रैल 1 को पहला प्लांट खरीदा. कितने में खरीदा प्लांट? दैट इज 6 लाख रुपीज में. और ये एंड कब होगा? 2016 दिसंबर 31. तो दिसंबर 31 से पहले आपने एक और प्लांट खरीदा 1 अक्टूबर में. अक्टूबर 1 में एक और प्लांट खरीदा. ठीक. कितने का खरीदा? या आपने खरीदा 4 लाख में. सो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता है उस पर क्या चार्ज करना है? डेप्रिशिएशन. दोनों पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे. जो फर्स्ट प्लांट है वो 6 लाख है और डेप्रिशिएशन इज 10%, 60,000. और कितने मंथ्स का? अप्रैल टू दिसंबर. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फॉर 9 मंथ, 45,000. एंड फॉर द सेकेंड इज 40,000 का है और 3 मंथ्स का, दैट इज इन 10,000. फिर आप क्या निकाल लोगे? बैलेंस. 1 लाख, 10 लाख में से 55,000 जाएगा तो आपका फर्स्ट ईयर का बैलेंस आएगा 9,45,000. सो जनवरी 1 2017 में बैलेंस होगा 9,45,000. नाउ जनवरी 1 2017 और इसका एंड होगा 2017 दिसंबर 31. इस पे आपको डेप्रिशिएशन लगाना है. लेकिन उससे पहले आपने एक और प्लांट खरीद लिया, प्लांट नंबर 3. कब खरीदा? ऑन जुलाई 1 एक और प्लांट खरीदा. कितने का? 2 लाख रुपीज का. तो जब आप डेप्रिशिएशन लगाओगे एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द 3 प्लांट, तो पहले प्लांट पे पूरा डेप्रिशिएशन लगेगा, दूसरे प्लांट पे भी पूरा डेप्रिशिएशन लगेगा. बट तीसरे प्लांट का डेप्रिशिएशन है एनुअल डेप्रिशिएशन 20,000. 2 लाख का 10%. कितने मंथ का? 6 मंथ का. क्यों 6 मंथ का? क्योंकि जुलाई में ये परचेज किया है. जुलाई टू दिसंबर इज 6 मंथ. सो ये हो जाएगा 10,000. ये हो जाएगा 1,10,000. फिर आप क्या करोगे? बैलेंस कर लोगे एट द एंड ऑफ द ईयर. फिर बैलेंस जब निकालोगे तो आएगा 11,45,000 माइनस 1,10,000. दैट इज इन 10,30,000. फिर ये बैलेंस आ गया 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस
BD 10,35,000। तो अभी तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने ज़्यादा बड़ा सफ़र तय नहीं किया है, सिर्फ 3 साल का हमने काउंटिंग ईयर का प्रिपेयर कर दिया है। क्या? दैट इज एन प्लांट अकाउंट। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद देख रहे हो कितना टाइम लगा, ओनली 5 मिनट इतना करने में। आप लोग एग्जामिनेशन में क्या होते हो, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हो, जिसके कारण कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस है। And after that question is saying about on 1st January 2018, यानी कि beginning of the 2018, यानी immediately January 2018 आपने जो प्लांट कितना खरीदा था 6 लाख, उसको इमीडिएटली सोल्ड आउट कर दिया, वो भी उसका कितना पार्ट, 1/3। तो जनवरी 1 2018 को आपने 1/3 ऑफ 6 लाख यानी 2 लाख रुपीज वाला प्लांट क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं चार्ज होगा क्योंकि ओपनिंग डेट भी जनवरी 1 है और सेलिंग डेट भी जनवरी 1 है, इसलिए कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। आप सबसे पहले सेल करोगे, कितने में सेल किया आपने, सेल किया 60,000 रुपीज में, क्योंकि वो ऑब्सोल्यूट हो गया। अब आपको ये निकालना होगा कि इस 2 लाख के प्लांट को जो आपने 60,000 में सोल्ड आउट किया, क्या आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 2 इयर्स पे डेप्रिसिएशन काउंट करोगे। सो उसकी वैल्यू थी ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2018, उसकी वैल्यू थी 2 लाख। तो आप पहले उस पर 2016 का, 2017 का, ये वैल्यू कब थी, 1 अप्रैल 1, उसकी वैल्यू थी 2016 में, उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। 16 में उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000, कितने मंथ्स का, फॉर 9 मंथ का, ठीक। और 17 में उस पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000। 15,000 16 में डेप्रिसिएशन लगा, 17 में लगा 20,000। सो उसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कब, 1 जनवरी 2018, वो कितना है, 35 माइनस करो तो आएगा 165। सो 165 इज अ बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2018, जिस मशीन को आप बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो, 60,000 में। सो लॉस ऑन सेल ऑफ सच प्लांट इज 165, उसकी बुक वैल्यू है, उसमें से माइनस करो सेल प्राइस, कितने में, 60,000 में, तो उसके लॉस कितना हो गया, 1,05,000। एंड दिस लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट्स अकाउंट, दैट इज इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज 1,05,000। ओके, ये आपने लॉस एंड प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो रिमेनिंग एसेट्स है, यानी 6 लाख में से 1/3 सोल्ड आउट हो गया, अभी 2/3 बचा है, ये कंप्लीट बचा है और ये कंप्लीट बचा है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं होते। आपको करना क्या रहता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे। फर्स्ट वाले में से 6 लाख में से 2 लाख ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई, तो 4 लाख का 10% इज 40,000। सेकेंड ईयर इज 4 लाख का 10% इज 40,000 एंड थर्ड ईयर 2 लाख का 10% इज 20,000। सो टोटल डेप्रिसिएशन इन द लास्ट ईयर 2018 इज 1 लाख। ये कब डेप्रिसिएशन रहेगा, 2018 दिसंबर 31। एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको पता है हम क्या करेंगे, इस अकाउंट का क्या निकाल लेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। बैलेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता है, डेबिट में से क्रेडिट की वैल्यूज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन में प्लांट अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एसेट डिस्पोजल अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी आपसे रिवाइज एंड रिकॉल किए जा सकते हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन इन योर कॉपी प्रॉपरली। So now, as you know, we are completed all the types of the questions related to depreciation. So let's be move to the
next chapter of class 11th accountancy for the revision point of view, and the next topic is rectification of error. Okay, so for the rectification of the error, let's we solve the one questions. Rectification of errors. Okay, so rectification of error, you know very well, कुछ errors होंगे उनको rectify करना होगा with the help of suspense account or without the help of suspense account. So the first error is Bing purchased of rupees 4,000 from Bheem was entered in the sales book but Bheem's personal account was wrongly credited. So very simple question. इसमें clearly लिखा है कि हमने भीम को क्या किया है, परचेस किया है भीम से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू भीम, ये होना चाहिए था. भीम कितने का, 4,000, और इसमें क्लियरली कह रहा है वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक, जिसे हमने किस में लिख दिया, सेल्स बुक में, तो एंट्री क्या कर दिया होगा हम लोगों ने एंट्री कर दिया होगा सिंपल सा सेल्स को क्रेडिट कर दिया होगा टू सेल्स, कितने से, 4,000 से. इसमें ये कह रहा है कि भीम को हम लोगों ने राइटली क्रेडिट किया, मतलब भीम को क्रेडिट सही किया है बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है. तो जब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो यू नो वेरी वेल ये गलत है और ये गलत है, ठीक है, सॉरी ये सही है, इट इज एन करेक्ट, ये तो करेक्ट ऑलरेडी है ही क्योंकि भीम में हम लोगों ने सही रिकॉर्ड किया है, सेल्स गलत है. तो जो गलत होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट, सेल्स को डेबिट कर देंगे और जो सही है उसको सही करते हैं एज इट इज, और हेल्प किसके लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट की, एंड द वैल्यू इज 4,000 एंड टोटल सस्पेंस अकाउंट ओपन फॉर रुपीज 8,000. Number second will be a sales to Nakul of rupees 4,300 credited to his account as 3,400. हमने सेल्स किया नकुल को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, नकुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड द अमाउंट इज 4,300, और उसे हम लोगों ने क्रेडिट किया उसके अकाउंट में ओनली 3,400. ठीक, यानी नकुल को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया कितने से, वैल्यू इज 3,400. बहुत ही गलत हुआ, यहां पे साइड भी गलत हो गया और अमाउंट भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गया. तो आपको पता है सही को सही करते हैं और गलत को भी अपोजिट कर देते हैं, और किसकी हेल्प लेते हैं, सस्पेंस की, 7,700. सो ये मिलकर आपका ओनली बन जाएगा नकुल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 7,700. इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, मतलब आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. ये मैंने दो साइड इसलिए बनाया कि करेक्ट क्या है और रॉन्ग है, और ये सब जो है वो रेक्टिफाइड है. ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन का है बिंग सोल्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,400 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 4,500. तो सिंपल सा है, जब हम ओल्ड फर्नीचर सोल्ड आउट करते हैं तो एंट्री क्या लिखते हैं, हम लोग एंट्री लिखते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, वैल्यू है आपकी 5,400. और क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों ने गलती क्या की, हम लोगों ने गलती ये कर दी कि इट विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, सेल्स को क्रेडिट कर दिया कितने से, 4,500 से. तो जब हम इसको करेक्ट करेंगे, यू नो वेरी वेल, इस सिचुएशन में जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो जो गलत है उसको सही कर देंगे, सेल्स को डेबिट करेंगे. ठीक, सेल्स को डेबिट कर दिया, और जो सही है उसको लिखेंगे ओल्ड फर्नीचर. सो 5,400 सेल्स हो गया 4,500. सो 900 विल बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट. सो आज के इस सेशन में
you can see that we solved the questions related to the rectification of the error, and such types of the question having a maximum chances will be called in your final annual examination. So I hope in today's video we covered the two important topics, that is depreciation and rectification of errors. So in the next video हम लोग और सारे टॉपिक्स और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर.